lot of tourists over here at this time, even though there are so many coffee shops on each side of the street, but there are not that much tourists. The only time I would say कि यहाँ पर tourists इस time पे हुआ करते थे is when there was FIFA World Cup a year ago. Use it like this to protect my head, and then the sleeves automatically goes like this, so more or less it's gonna cover my head like this until I walk. What a beautiful view to have your lunch. Mostly जो लोग हैं कतर में वो दोहा में रहते हैं. 2.6 मिलियन आबादी है पूरे कतर की, which is 25 लाख. So 25 लाख लोगों का मुल्क है ये. तो जो ओशन है यहाँ पे उसका काफ़ी खूबसूरत ब्लू कलर का पानी है. एंड आई थॉट आई विल टेक अ बोट राइड इन दैट, बट टुडे द विंड जो मैंने अभी चेक की इट्स 38 किलोमीटर पर आवर. एक्सट्रीम विंड चल रही है आज. एंड आई ऑल्सो हेयर्ड कि जो विंटर का सीज़न होता है यहाँ पे जनवरी में स्पेशली, जब टेम्परेचर गिरता है समवेयर, लेट्स सपोज इफ द टेम्परेचर ओवर हियर इज 20, इट फील्स लाइक somewhere around 14-15. That's what I was being told by the locals over here कि क्योंकि एक साइड डेजर्ट है और एक साइड पे ओशन है, so the city is in the middle, so because of that in January आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, and you'll see people wearing jackets and puffers over here. This is Arabian Gulf. So these are the towers जो कि पुराने ज़माने में कतर के लोग यूज़ करते थे पिजन्स के लिए. वो यहाँ पर आते थे and they used to poop in these holes, और basically वो बाद में उसको as a fertilizer यूज़ करते थे क्योंकि ये बहुत गरीब थे पहले. Okay, so this is called maha in Arabic and Arabian oryx in English. That's the national animal of Qatar. अब 11 बज रहे रात के, मैं रेडी हो गया हूँ, डिनर करके निकलते हैं. Is it the traditional knives that like we that see? traditional knife style Arabic, like that, like this one, like this one, like this one, and this one. These people are working extremely hard over there in this extreme 42 temperature, और 90% ये पाकिस्तानी, बंगाली and Indians होते हैं. So I feel for them, yeah. Potatoes and of course इनकी traditional chawal, roti, and then these are the salads. So मैंने कभी भी ज़िंदगी में एयरपोर्ट के अंदर इतने बड़े बड़े पौधे नहीं देखे. बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने. Human beings to survive in the deserts, and we can see a lot of camels on our right hand side right now. So the camel. अस्सलाम वालेकुम and welcome back to another vlog. एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और इस वक्त पाकिस्तान जाने की तैयारियाँ चल रही है, लेकिन रंग में भंग डाला है इज़राइल एंड ईरान ने. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव बीन कैंसल. मेरा भी फ़्लाइट कैंसिल हो गया है. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट फॉर नाउ जाना है मैंने कतर, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद. ओनली गॉड नोज़ हाउ, बट लेट्स सी. अभी तो मुझे आफ्टर आई थिंक 7-8 आवर्स डिले के बाद जस्ट दोहा तक की फ़्लाइट मिली है. आगे जाके देखते हैं क्या होता है. आइए और इन्जॉय करिए आज का व्लॉग. सो फ्लाइट मोस्टली खाली है. हमारे साथ एक कुवैत एयरलाइन की भी फ़्लाइट जा रही है. होप फॉर द बेस्ट. हम तब तक मूवी देख लेंगे और जब थकेंगे तो इसको अपना बेड बना लेंगे, आराम से लेट के सो जाएंगे.
Let's get out of the plane now. So एयरपोर्ट पे फंसे रहने की वजह से ये काफ़ी पैसेंजर्स आप देख रहे हैं जो यहीं पे अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं. Everybody is finding their self a place. So this is Qatar airport, and I was being told by Qatar Airways that they have arranged a hotel for me, so I'll have to go out of the airport. वहाँ पे rest करूँगा hotel में, and then when they'll arrange a flight for me, the next flight to Pakistan, they'll pick me up and then I can get that flight to Pakistan. 2 hours later. That's Qatar airport for you, and I got my hotel booking and the next boarding pass. Alright, so the update is that I am in Doha, Qatar right now. इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है इस्लामाबाद की जो कि रात के 2 बजे है. सो करीब 12 से 13 घंटे मैं कतर में ही हूँ. मैंने एक सिटी टूर बुक किया है जो कि 25 पाउंड्स का था. And there will be a bus coming up to pick me up now. I'll have a tour of the city and then I'll go to my hotel. जो कि Qatar Airways ने मेरे लिए बुक किया है. I'll be there for a while. I'll take a shower, have some food, and then I'll come back to the airport to get on the boat for my next flight. So let's see how Doha, Qatar is. Temperature इस वक्त 39 डिग्रीज़ है और मैं 9 डिग्री से आया हूँ. So एक काफ़ी ड्रॉप आया है टेम्परेचर में. But hope for the best. Fingers crossed. Let's see how it goes on. So ये हमारी टूर गाइड है और ये सामने बस में हमने जाना है सिटी टूर पर. Let's go in it. हवा जो लग रही है काफ़ी गर्म है. बाय द वे खजूर के बाग में खजूर देखिए जनाब. नाइस. ईंट का साइन इसलिए बनाया है इन्होंने क्योंकि यहाँ पर 8 स्टेडियम है. फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था लास्ट ईयर. इनके छत ऐसे हुआ करते थे पहले. तो ये इन्होंने जो कल्चरल यहाँ पर एक टूरिज़म के लिए जगह बनाई है उसमें अपनी कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ अपनी वही पुरानी आबादी की एक झलक दी है क्योंकि दे वर नॉट दैट रिच लॉन्ग टाइम अगो. सो इसी तरह के छत होते थे इनके. यहाँ से एक व्यू पॉइंट है ऊपर. लेट्स गो अपस्टेयर्स. इतनी गर्मी है यार 40 डिग्री और मैं अपने ग्लासेस लाना भूल गया. सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ वाइट. आंखों को छुप रहा है. ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये पुराने ज़माने में कतरी लोग पिजन्स के लिए बनाते थे ताकि कबूतर वगैरह इस पे आए और बैठे यहाँ पर. और इन्होंने सुराख किए हैं और एक स्टिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे हर सुराख के साथ. तो ऑब्वियसली उनके बैठने के लिए. और फिर दे यूज्ड टू पूप इन दोज होल्स. तो जो उनका वेस्ट होता था कबूतरों का जो वो करते थे वहाँ पर उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे अपनी काश्तकारी
के लिए। तो ये अभी भी उन्होंने अपने कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पर कल्चर सिटी में छोड़ा है। But we are almost at the Silk Water. If we translate the कतर की name official Silk government Water from की building Arabic, है। Silk It's means kind of a market, parliament, you can say. Water. Most of the market is closed because, as I mentioned earlier, दिन को यहाँ पर लोग नहीं होते, रात को ज़्यादा आपको दिखेंगे लोग। यहाँ के स्पाइस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर आप देखें ना, these are dry lemons. You'll see the coffee shops empty because it's too hot at this time. Look, it's 42 degrees at the moment, and you won't see a lot of tourists over here at this time, even though there are so many coffee shops on each side of the street, but there are not that much tourists. The only time I would say कि यहाँ पर टूरिस्ट इस टाइम पे हुआ करते थे is when there was FIFA World Cup a year ago, and local जितने भी है they prefer to come later on in the evening time. That's what locals do over here. But हम तो टूरिस्ट हैं और हमारे पास गिन चुन के कुछ घंटे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अपने कल्चर को उसी तरह रखा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। You should know your grounds, I would say. Oh my God. Oh, Bismillah. Bismillah. Beautiful. Is it the traditional knives that Like we that, see? traditional knife style, Arabic like that, like this one, like this one, and this one. All right. For cigarettes, it's a lighter. This also is a lighter. It's beautiful, guys. Maha in Arabic. Okay, so this is called Maha in Arabic and Arabian Oryx in English. That's the national animal of Qatar. You've seen that on, I think, the Qatar Airways के जितने aeroplanes है, you can see that. This is the trophy of FIFA World Cup जो कि कतर में हुआ था, and then that's their traditional kulhada. The families should be proud of them because these people are working extremely hard over there in this extreme 42 temperature, और 90% ये पाकिस्तानी, बंगाली and Indians होते हैं. So I feel for them, yeah. Rather than getting an Uber, it's better that I should walk. I can see some more attractions of Qatar as well, but इतनी heat है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ. So मैंने एक जुगाड़ निकाला है, मेरे बैग से अपना टी-शर्ट निकाला है, and look what I'm doing. Use it like this to protect my head, and then the sleeves automatically goes like this. So more or less it's gonna cover my head like this until I walk. Let's see if it works. Guys, it works.
So that's the hotel, Central Inn, जहाँ पे मेरी बुकिंग है। अंग्रेज़ी में सेंट्रल इन और ये अरबी में सेंट्रल इन। सूके वाकिफ़ मतलब मे बी होटल होता है अरबी में, आई एम नॉट श्योर। बिस्मिल्लाह। मिस्टर कलीम खान हैव चेक्ड इन, 7th फ्लोर पे हमारा रूम है। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल। Look at the elevation. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. MashaAllah. It's a very beautiful room. बैग को रखते हैं यहाँ एंड पहले मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। So that's the shower area and obviously that's the compartments। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है। And let's see what's here. Oh wow, although सूरज थोड़ा चुभ रहा है but I'll show you the view from here. That's the view from the top of my hotel. अभी इसको करते हैं बंद। That's all. And I'm gonna get a shower. शावर ले लिया है, फ्रेश हो गया हूँ एंड आई फील मच बेटर। कतर में 2 वेदर होते हैं, एक हॉट और एक एक्सट्रीम हॉट होता है। जिस वेदर में मैं आया हूँ दिस इज़ नॉट एक्सट्रीम हॉट, सो आई कैन गेट एन आइडिया कि एक्सट्रीम हॉट वेदर यहाँ पे कैसे होता होगा। खैर कतर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है और देयर इज़ नो टैक्सेशन ओवर हेयर एज वेल। एंड बाकी दुनिया में मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर फ्राइडे इज़ a complete off day. Friday, Saturday, they do that as a weekend, and Sunday is a working day. So first day of every week starts from Sunday, and I think most of the Gulf countries follow this as well. उसके अलावा इनका जो main source of income है that is gas and petrol, of course, and it's one of the safest country of the world as well. You won't see much people, roaming around in daytime. One, because of heat, because when it's extreme hot the humidity goes to 85%, so obviously that's extremely hot weather at that time. I won't prefer to go out as well. Mostly जो लोग हैं कतर में वो दोहा में रहते हैं। 2.6 मिलियन आबादी है पूरे कतर की, which is 25 लाख। so 25 लाख लोगों का मुल्क है ये। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली इनकी अरबिक है एंड ऑफिशियल करेंसी इज़ कुवैती रियाल। और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, आई थिंक दिसंबर 2022 में हुआ था, which was held in Qatar over here, and at that time it was obviously December January is the winter season over here, so उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने वर्ल्ड कप कराया था and that was the first World Cup in any of the Gulf countries। and जितने भी स्टेडियम थे आई थिंक 6-7 स्टेडियम वो सारे के सारे इस एक दोहा सिटी में इन्होंने बनाए थे। ऑब्वियसली जहाँ पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ पर स्टेडियम्स काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, मोस्टली डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, बट दैट स्पेसिफिक वर्ल्ड कप वाज इन दोहा एंड ऑल द स्टेडियम्स वर इन दिस वन सिटी। तो जो ओशन है यहाँ पे उसका काफ़ी खूबसूरत ब्लू कलर का पानी है एंड आई थॉट आई विल टेक अ बोट राइड इन दैट, बट टुडे the wind जो मैंने अभी चेक की it's 38 किलोमीटर पर आवर, एक्सट्रीम विंड चल रही है आज। एंड I've also heard कि जो विंटर का सीज़न होता है यहाँ पे जनवरी में स्पेशली, जब टेम्परेचर गिरता है somewhere, let's suppose if the temperature over here is 20, it feels like somewhere around 14-15. That's what I was being told by the locals over here कि क्योंकि एक साइड डेजर्ट है और एक साइड पे ओशन है, so the city is in the middle, so because of that in January आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है and you'll see people wearing jackets and puffers over here, so that was rare for me। उसके अलावा जो ओशन है
लॉन्ग टाइम अगो पुराने ज़माने में लोग वहाँ पर डाइविंग करके पर्ल्स निकालते थे, यू नो डायमंड्स, मादनियात। एंड आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, और जो ओल्ड बोट्स है लकड़ी के बने हुए, दे यूज टू यूज़ दोज बोट्स। बट अभी उन्होंने सिर्फ वो अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए वो एज अ टूरिस्ट के लिए रखा हुआ है। नॉट टू मैनी पीपल यूज़ दैट, बट स्टिल देयर आर सम अदर बोट्स दैट पीपल यूज़ when they come over here for their vacations or, you know, visit the Qatar. So these were some of the facts that I thought I should share with you about the beautiful country of the Gulf called Qatar. अभी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, so मैं जाता हूँ लंच करने. Let's go and have our lunch. Assalamu alaikum. So, okay, nice. Keema, pasta. Sorry. What's this? Prawns. Is it prawns? Or mussels. Ah, okay. Potatoes. And of course, इनकी traditional chawal, roti, and then these are the salads. Not sure क्या क्या चीज़ें, almond, ये दही है, I think गाजर का हलवा है. And this is achar. What a beautiful view to have your lunch. So अब डेज़र्ट लेंगे. डेज़र्ट में जलेबी है एंड ये गुलाब जामुन है. That's all I know. थोड़ा सा मैंगो जूस भी ले लेंगे, बार बार नहीं आना मैंने. So this is our first lunch in Qatar. सबसे पहले चावल खाएंगे. And yeah, kaleji is nice as well. Spring roll. Very nice. ये चीज़ मैंने टर्की में भी खाई थी, नाम नहीं आता इसका. ऊपर इसके इन्होंने साफ़रोन डाला हुआ है, और साफ़रोन दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑब्वियसली ईरान में होता है, और यहाँ पर भी सारा साफ़रोन ईरान से ही आता है. ये नहीं पता क्या चीज़ है, और ये दिखता तो सी फूड के जैसे है. लेट्स सी क्या है. गुलाब जामुन खा लेते हैं बस भाई. गुलाब जामुन इतना सख्त है, डिफरेंट, मे बी ये लोग डिफरेंट खाते हैं क्या, जैसे चॉकलेट हो. यू कैन सी द सिटी ऑफ दोहा, कतर. बिस्मिल्लाह. I'm really tired, man. I need to sleep, and I'll see you once I get up. So नींद से उठ गया हूँ एंड फ्रेश होके निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ. फ़्लाइट में 2-3 घंटे बाकी है, तो चलते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान. 11 बज रहे रात के. मैं रेडी हो गया हूँ, डिनर करके निकलते हैं. गुड बाय. Chicken, I'll have chicken with some sabzi and some chawal. That's all. Some dahi on the top and salad. There are a lot of options in dinner. I'll have this as well. ये बहुत tasty था with some salad. चेक आउट करके निकलते हैं. बैक टू द एयरपोर्ट.
plants inside. इतने खूबसूरत पौधे लगाए हैं एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने. लोग तो खैर सो रहे हैं यहाँ, जिनकी फ्लाइट्स अभी डिलेड है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. इट्स ब्यूटीफुल. सो मैंने कभी भी ज़िंदगी में एयरपोर्ट के अंदर इतने बड़े बड़े पौधे नहीं देखे. बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने. आई थिंक पहले जब मैंने कुछ 1 साल पहले ट्रैवल किया था तब ये पौधे यहाँ पर नहीं थे, बट लुक एट दिस मैन. और बीच में आपको परिंदों की भी आवाज़ आ रही होगी. आई एम डेड श्योर कि ये तो ऑब्वियसली कहीं स्पीकर पे इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर ज़िंदा परिंदे तो नहीं हो सकते फॉर श्योर. और क्योंकि इन्होंने जंगल बनाया है तो जंगल में सारे एनिमल्स भी है. एलिफेंट, जिराफ, हिप्पो, हॉर्स, टाइगर, monkey, and what's here? Gorilla, bear, deer. The concept of a jungle is beautiful. That's how the jungle looks from the top. प्रेयर रूम भी है यहाँ पर, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Finally I'm going home, man. घर पर किसी को नहीं पता मैं आ रहा हूँ. So it's gonna be a huge surprise and a shocker for everybody. इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका हूं. घर में मैंने किसी को नहीं बताया. नोबडी नोज़ कि मैं आया हूं. और इसी एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब से आई थिंक करीब 8-10 घंटे बाद मेरे पेरेंट्स ने भी लैंड करना है सऊदी अरब से. वो हज पे आ रहे हैं. सो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर देम एज़ वेल. बट पहले मैं घर जाऊँगा, घर वालों से मिलूँगा, एंड देन ऑब्वियसली थोड़ा आराम करके रेडी शेडी होके फिर इंशाल्लाह पेरेंट्स को लेने वापस एयरपोर्ट यहीं पर आना है. सो लेट्स गो होम. आई बुक्ड एन ऊबर फॉर माई सेल्फ. Several days later. ब्लॉग को एंड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहमान आ जा रहे थे. और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन अल्लाह पामान. बाय बाय बोलो. बाय बाय.